Hello students, how are you? In the previous video class, I taught you about a poem, A Tiger in the Zoo. In this video class, today I am going to teach you the second lesson of your first flight book, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Actually, in this lesson, I am going to teach you about apartheid system in South Africa. I will tell you who was Nelson Mandela, why did he become worldwide, why did he gain famous city, popularity in the world. First of all, I want to tell you the glimpse of this lesson. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This is the name of the lesson. And this story has been composed by Nelson Rolihlahla Mandela. This is the full name of Nelson Mandela. In this story, Mandela has composed 4 characters. First, Nelson Mandela himself is the main character of this story. Second character is Janani. As you know that Janani was his daughter who helped him too much in protesting against apartheid. Third, Mr. de Klerk, who became the second deputy president, and last Thabo Mbeki, who appointed as the first deputy president. This is the glimpse of this lesson. Now I tell you some more information about Nelson Mandela. Actually, Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in the tiny village of Mabejo. Mabejo is the name of his village where Nelson Mandela was born. On the banks of the Mabesi River in Transkei, which is in South Africa. His birth name was Rolihlahla Mandela. Here I will tell you the meaning of Rolihlahla in the Xhosa language. Literally means pulling the branch of a tree, but more commonly translates as troublemaker. Now I am going to tell you about Mandela's family background. Mandela's father, who was destined to be a chief, served as a counselor to tribal chiefs for several years, but lost both his title and fortune over a dispute with the local colonial magistrate. Mandela was only an infant at that time, and his father's loss of status forced his mother to move the family to Kunnu. This is the name of a small village, Kunnu, and even a smaller village north of Mabejo. The village was nestled in a narrow grassy valley. There were no roads, only footpaths that linked the pastures where livestock grazed. Now, Mandela's family lived in huts and ate a local harvest of maize, sorghum, pumpkin, and beans, which was all they could afford. It means that his childhood spent
in poverty. In which family he was born? He was very poor. Now, I am going to teach you about this lesson. Actually, in this lesson, Mandela has emphasized on a word, apartheid. Apartheid. And only this word makes him famous in the world and gain popularity for him. Now I tell you the meaning of apartheid. First of all, you know how to pronounce this word apartheid. Apartheid. Apartheid is a political system that separates people according to their race. In other words, we can say that apartheid is a racial segregation, racial separation, where segregation was based upon cultural and gender. Culture and gender. Actually, when the former government was in South Africa, they spread apartheid system in South Africa. You all know that European governed South Africa in olden days. पहले यूरोपवासी अफ्रीका पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, पूरे अफ्रीका महादेश को गुलाम बनाए हुए थे। वहाँ पर यूरोपवासियों ने जब सत्ता संभाली, अपना सरकार बनाया, उन लोगों ने रंग भेद की नीति अपना ली। रंग भेद की नीति ही अपार्थाइड कहलाता है। मेनली काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव, वेयर द व्हाइट मूव, सीट, लिव, एंजॉय, एट दैट प्लेस द ब्लैक वर नॉट अलाउड टू सिट बिसाइड हिम. In which garden the white spent their time, the black were not allowed to go to that garden. Such type of system was spreading in South Africa, and this system is called apartheid. This extract has been extracted from his biography, Long Walk to Freedom. Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. That is called the inauguration. About apartheid and about his struggle. Now, I am going to teach you how did Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. गोरे लोगों के 300 शताब्दियों से ज़्यादा समय तक शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक इतिहास में नेल्सन मंडेला 400 सीट पर लड़ते हुए 252 सीट पर विजय प्राप्त किया था. यह सबसे बड़ी विजय थी काले लोगों का गोरे लोगों के विरोध में. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. आज इस इनॉग्रेशन समारोह का संचालन साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर जो प्रिटोरिया में किया गया है. एम्फी थिएटर का मतलब होता है ओपन लार्ज बिल्डिंग, ओपन थिएटर, जिसमें छत नहीं होता है, सराउंडिंग्स होते हैं, सीट्स होता है, मंच होता है, बट छत नहीं होता है. सच टाइप ऑफ थिएटर इज नोन एज एम्फी थिएटर, और यह प्रिटोरिया में है. और इस समारोह में, इस इनॉग्रेशन में
पूरे विश्व के डिग्निटरीज आए हुए थे, महान लोग सब, प्रसिद्ध लोग सब आए हुए थे। लगभग 140 देश के नेता इसमें भाग लिए थे। उन्हीं को पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज कहा गया है। नेवर विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और इन्होंने वहां पे शपथ लिया कि आज के बाद कभी भी यह सुंदर और शानदार जमीन अब किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऑपरेस नहीं किया जाएगा, सताया नहीं जाएगा। नेल्सन मंडेला ने ऐसा इनॉग्रेशन को संबोधित करते हुए कहा। He said that jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। और प्रिटोरिया की गलियों में जो यह शानदार, भव्य, सुंदर, हिलेरियस, आनंददायक जो दृश्य था, उसमें वो आनंददायक दृश्य क्यों था? यह समारोह इतना शानदार क्यों माना गया, हिलेरियस क्यों माना गया? क्योंकि इस समारोह में अफ्रीका के सब और विश्व के, अफ्रीका और विश्व के सभी रंगों के लोग शामिल थे। अफ्रीका के उजले और गोरे लोग आज साथ साथ इस एम्फी थिएटर में बैठे हुए थे और इनके साथ 140 कंट्रीज से आए हुए पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज भी साथ में बैठे हुए थे। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा कि फिर दोबारा इस प्रिटोरिया की धरती को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा, इतने आनंद के दिन दोबारा इस धरती पे नहीं आएगा। मोर देन लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेज sang and danced with joy। और लगभग लाखों से ज्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष और महिलाएं और बच्चे एक साथ नाचे थे, गाए थे, झूमे थे। नाउ आई एम गोइंग टू start the lesson। 10th May dawned bright and clear। 10 मई का सवेरा बिल्कुल सुंदर था, क्लियर, स्वच्छ था, साफ था। शाइनी मॉर्निंग था। क्लियर एंड ब्राइट एंड क्लियर मीन्स शाइनी, चमकता दमकता सूरज आसमान में निकला था। dawned means came, dawned means came। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations। और इन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के कोने कोने से आए हुए डिग्निटरीज, लीडर्स से घिरा हुआ हूं। उनके साथ काफी मैं व्यस्ततापूर्वक समय बिता रहा हूं, जो इस इनॉग्रेशन को सम्मान देने के लिए समय से पहले आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और यह इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ सबसे बड़ा सेरेमनी होगा, सबसे बड़ा इनॉग्रेशन होगा। इससे बड़ा इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती पर न पहले कभी हुआ था और न बाद में होगा। रियली इस इनॉग्रेशन में साउथ अफ्रीका के गोरे काले लोग साथ थे और 140 कंट्रीज के लीडर्स, महान व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति लोग पहुंचे हुए थे। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। और यह सेरेमनी प्रिटोरिया में सैंडस्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में किया गया था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों से प्रिटोरिया का यह एम्फी थिएटर साउथ अफ्रीका में शासन करने वाले गोरे लोगों के अधिकार में था। इस पल से पहले काले लोगों को वहां प्रवेश निषेध था, प्रोहिबिटेड था। काले लोग उसके साथ वहां जाकर नहीं बैठ सकते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। लेकिन अभी प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर का जो आंतरिक नजारा है
वह रेनबो के समान दिख रहा है, क्योंकि सभी कलर के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और ये सब लोग आज साउथ अफ्रीका के आज़ादी के बाद पहले डेमोक्रेटिक को प्लेस करने के लिए आए हैं, पहले डेमोक्रेटिक को लागू करने के लिए आए हैं, जो कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। और उस शानदार ऑटम के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी थी। ऑन द पोडियम, और मेरे साथ मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मेरे साथ मंच पर में मिस्टर डी क्लार्क थे, जिन्होंने सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया था। देन थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मबेकी पहला डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी बारी आई, and when it was my turn, और जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ लिया कि मैं अपने देश के संविधान के नियमों का पालन करूंगा और उसको हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ाऊंगा। एंड मैं आज से रिपब्लिक और इसके नागरिकों के प्रति खुद को समर्पित करने का भी शपथ लिया था। उन्होंने शपथ लिया कि आज से इस दिन के बाद जब साउथ अफ्रीका में एक नया डेमोक्रेसी लागू होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा, उसके बाद वो देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे। ही विल नॉट do his personal work. Whatever he will do, his work will be for the people, and he will always respect the constitution of South Africa. To the assembled guests and the watching world, I said, और जो भी वहाँ पे उस समारोह में शामिल थे, जो मौजूद अतिथि थे, जो जब पूरा विश्व देख रहा था, पूरे विश्व के लोगों के सामने मैंने ऐसा शपथ लिया था। टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो क्लास। रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास।